नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज अपना ये पहला मीटिंग है एस्ट्रोलॉजी कम्युनिटी का। वी ऑल आर मीटिंग इन आवर फर्स्ट एवर community meeting, astrology community meeting today. All those who are interested in astrology are interested in basically knowing the science of karmas, for knowing how the whole universe works, what are the laws which are governing the working of the whole universe, the working of the whole individual system as well as the universal systems. यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, इस पिंड में भी क्या हो रहा है और इस ब्रह्मांड में भी क्या हो रहा है, इसमें जिनको भीतर एकदम गहरी रुचि रहती है वही इसमें आते हैं और हमेशा गुरुओं के आशीर्वाद से ही ये ज्ञान हमें मिलता है। Let us pray to the masters and receive their blessings before we enter into this deep ocean of Jyotish Shastra or astrology. Jyotish, the very word says that it's the light. Jyoti, Isha, Isha ki Jyoti. It's the light which is a divine light, which is the light of the God or the divinity. Let's invite that light by praying to the masters and surrendering at their lotus feet and getting into the flow of their grace. Guru Kripa hi keval. Become aware of your breath. Your breath is your first guru. It tells about what is happening within you. Become fully aware of your breath. As you inhale, let your attention be inward and upward and go within. When we go within, the mind silences and the awareness increases. In this state now, deep in our heart, which is the seat of the divinity, from that seat we can connect to the masters. The divine within us is residing into the deep caves of our heart. So we go within and connect to the heart and offer the prayers of Guru Vandana at the lotus feet of the masters. गुरुओं के चरणों में अपनी गुरु वंदना को अर्पित करते हैं और हम अपने आप को समर्पित करते हैं गुरुओं के चरणों में इस प्रार्थना द्वारा. We'll chant Om 3 times. Take a deep, relaxed breath. गुरु परम पूज्य श्री महाअवतार बाबा जी, all the masters of Guru Mandal who are guiding us, who are nurturing us and who are taking care of us in every moment. Let's bow down to them and also offer our pranams to all the rishis who have given this science of Jyotish Shastra to us. ऋषि मंडल के उन ऋषियों को भी प्रणाम करते हैं और ये गुरु वंदना के फूल उनके चरणों में अर्पित करते हैं. ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं
दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम श्री सद्गुरवे नमः। Praying to the masters, receiving their blessings and getting into the flow of their grace. Now let us enter into the session today. Why somebody gets interested in knowing astrology? There are two reasons. One thing is I am deep down in trouble or in problem and I want a solution for my problem. That is one category. And another category is who really wants to know that managing one household is so difficult. How this God must be managing this entire universe, such a huge magnanimous system, and what must be the laws which must be governing this entire cosmos. Everything is working in perfect harmony. Even the blade of grass moving here, the repercussions are all over the cosmos, and still the whole cosmos is working in a balanced manner. What a wonder of the wonders, right? So this is the attitude with some of the people. They want to know this, and with that they want to get into astrology. Anyway, this science leads us into the deep oceans of knowledge that know to the depth what you are, why are you existing, and where are you existing, and what is the purpose for what you have come into this human body. And this soul has traveled through the whole journey, and in that journey there are many past lives. Those past lives were in different forms. What karmas have we performed in those lives? How those karmas have become seeds. So एस्ट्रोलॉजी में या ज्योतिष शास्त्र में जो कंसेप्ट है बेसिक वो ये है कि कर्म है, उस कर्म का कर्म फल मिलता है, मगर उसके बीच में एक कर्म बीज बनता है. वो कर्म बीज जो है कर्म विपाक उसका बनता है. हाउ यू रिएक्ट when that karma is being performed, at that time when the seed is getting formed, what is your reaction? जैसे हम कहते हैं कि नींबू है तो वो तो एसिडिक है ना, वो अगर पेट में जाता है तो वो अल्कलाइन होता है. सो एसिडिटी के लिए वो दवा बन जाता है. तो कोई भी कर्म हमको बुरा लगता होगा ऊपर ऊपर से देखेंगे तो, मगर गहराई में जाएंगे तो वही कर्म हमको और कुछ अच्छी दिशा में ले जाने के लिए उसका परिणाम हम अच्छी तरह से देखेंगे तो हम उसी कर्म द्वारा हम अच्छी दिशा में जा सकते हैं. तो कुछ भी हमारे जीवन में घटना घटित होती है तो हाउ आर वी रिएक्टिंग और रिस्पॉन्डिंग टू इट इन एवरी मोमेंट विल डिसाइड हाउ दैट सीड विल गेट सोन इन आवर कॉन्शियसनेस. सो द अवेयरनेस विल इंक्रीज इफ वी नो दिस साइंस. दैट इज द होल पर्पस व्हाई वी आर लर्निंग दिस साइंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी. हमें अगर ये समझ जाए कि इन कर्मों का ये नतीजा हो सकता है तो कर्म करते वक्त ही हम जागरूक हो जाएंगे और वो कर्म गलत तरह से हमसे नहीं होगा. पूर्ण जागरूकता में हम उस क्रिया को करेंगे और वो क्रिया हमें सही दिशा में ले जाएगी. इसीलिए हम सीख रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजी के साइंस में बड़े उतार चढ़ाव आने वाले हैं. आने वाले ज़माने में देयर इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ टर्मोइल इन द coming years. So it's best if we are proactive, we prepare ourselves with this knowledge and we remain sthita prajna from inside with that knowledge.
So whatever situation is coming, we know that situation, we are prepared for that situation in the right way, so that we don't react and we don't spoil the situations at least around us. Not only that, we become the guiding light. ज्योतिष शास्त्र ज्योति है ये, तो इसके साथ में we become the guiding lights to many people around us who will be guided rightly in the life in the coming times. तो क्या आने वाला है, किस तरह से ये सब होने वाला है, ये सारी चीजें गुरुजी इसके गहराई में रोज, उनको दिन रात और कुछ नहीं सूझ रहा है. ये दुनिया जिस तरफ जा रही है, we have to become strong enough to stand on our own feet, and not only that, we should know more and more about all these laws of universe, and we should be able to give this knowledge to the whole world, so that everybody starts getting prepared, so that this whole globe becomes a beautiful place to live in. Vasudhaiva Kutumbakam, and it has to be led to the सर्व मंगल मांगल्य. हर किसी के मांगल्य के लिए हमारी तरफ से प्रयत्न होना चाहिए. इसीलिए यही एक ज्योतिष शास्त्र के ऊपर की ये कम्युनिटी शुरू करने के पीछे का इरादा है. तो गुरुओं को प्रणाम करते हैं कि हमें इसी दिशा में हम सब जाएंगे, ये सब सीखेंगे, तो ये जो भी नॉलेज मिलेगा सबके भले के लिए यूज करेंगे, अपने स्वयं के उद्धार के लिए यूज करेंगे. आए हैं इस मानवीय शरीर में, उसका सही उपयोग करेंगे, और आत्म घट प्रकाश, इस घट में भी प्रकाश हो जाए, जिस प्रकाश द्वारा बाहर भी सब जगह पर हम सबको गाइड करते हैं. इसके साथ में अभी सेशन की हम शुरुआत करते हैं और अपने प्रिय गुरुजी को आमंत्रित करते हैं आगे का सिखाने के लिए. नमस्ते और आप सभी का स्वागत है. ये पहला सेशन एस्ट्रोलॉजी कम्युनिटी का. पिछले कुछ दिनों से बड़ी इंटेंसिटी के साथ में मैं काम कर रहा हूँ एस्ट्रोलॉजी पे. करीबन 70-80 लोग सीख रहे थे, उसमें से अभी 40 जन एडवांस वर्कशॉप में भी है, पास्ट लाइफ एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं. तो रोज कुछ ना कुछ नया हो रहा था. तो मैंने देखा कि जब मेरे 100 स्टूडेंट हो जाएंगे ऑफिशियल सीखने वाले, इंटेंसिटी से सीखने वाले, तो हम कम्युनिटी शुरू करेंगे. तो 100 स्टूडेंट हो गए और हमने ये कम्युनिटी लॉन्च किया है. द कम्युनिटी का मकसद क्या है, कैसे काम करेंगे हम लोग सब मिलजुल के, तो मैं आपको थोड़े इसके, मैंने कुछ प्रेजेंटेशन बनाया है, मैं आपको बताता हूँ. So hearty welcome to all of you to this astrology community. This is our weekly online forum for discussions and question answer on astrology. So the aim objective is very clearly defined and we are going to follow these things. Okay. अगर कुछ corrections करना पड़ा future के दिनों में तो वो भी करेंगे. But basic we are starting with something very clear mind कि क्या करने का है. अब ये 3 एजेंडा है इस फोरम के लिए, सो दैट ऑल ऑफ यू आर वेरी क्लियर. आप कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहले पूछते हैं कि इसका मकसद क्या है, व्हाट इज द एम एंड ऑब्जेक्टिव, सो दैट वेदर टू स्टे देयर और नॉट टू स्टे देयर, बिकॉज पीपल आर बिजी एंड योर टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो वी शुड बी वेरी क्लियर अबाउट व्हाट विल बी डूइंग. So purpose of this astrology community and our weekly online session is to create interest in astrology. So I'll be telling you a few very interesting things. जो इंटरेस्टेड है वही लोगों ने ज्वाइन किया, फिर भी आपके इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए हम थोड़ा सा योगदान करेंगे. कुछ अच्छी इंटरेस्टिंग बातें करेंगे ताकि सबका इंटरेस्ट अलाइव रहे. ये हमारा वेद वेदांत का एक भाग है एस्ट्रोलॉजी, और पुरानी सनातन संस्कृति के साथ में सदियों से जुड़ा हुआ है, और हमारा भी कुछ योगदान होना चाहिए हमारी संस्कृति के प्रति, हमारे सनातन के प्रति. तो हमारा जो विषय है ज्योतिष शास्त्र का, उसके जरिए हम कुछ हमारे लोगों को कंट्रीब्यूट कर सके, इस भावना से हम इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे एस्ट्रोलॉजी. टू बी मोर स्पेसिफिक, शेयर इंफॉर्मेशन अबाउट ट्रांजिट्स. अभी जैसे ग्रह गोचर अवस्था में जो होते हैं वो पूरी दुनिया को इन्फ्लुएंस करते हैं. तो गोचर के ग्रह जिसको कहते हैं ट्रांजिट, प्लैनेट्स इन ट्रांजिट, अभी कहाँ पर है,
कौन सा ग्रह कहाँ पर है, वो इन्फ्लुएंस करता है लोगों को, पूरी दुनिया को इन्फ्लुएंस करता है। तो अभी क्या परिस्थिति है और क्या हो सकता है दुनिया में इमीडिएटली, अभी हमको क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए। तो ये ट्रांजिट्स जो रेगुलर होते रहते हैं, कोई भी ग्रह एक राशि से दूसरी राशि में जाता है तो उसका प्रभाव होता है। कभी कभी 2 4 5 ग्रह एक साथ में आ जाते हैं, कुछ स्पेशल योग बनते हैं, कुछ स्पेशल ओकेजन्स बनते हैं। तो वो सारे हॉरोस्कोप वगैरह जो है हम इस ग्रुप पे शेयर करेंगे। डिस्कशन जूम पे होगा ऐसे, और ये जो सारी कुंडली वगैरह है उसका पोस्टिंग जो है एस्ट्रोलॉजी कम्युनिटी व्हाट्सएप ग्रुप पे होगा, ताकि आप लोग सभी जो इंटरेस्टेड है इनको एनालिसिस कर सको। आपके मंतव्य आप ग्रुप पे भी डाल सको, यहाँ पर ग्रुप डिस्कशन में भी रख सकते हो। सो दिस इज बेसिकली कम्युनिटी एफर्ट, वी ऑल हेल्प ईच अदर। तो ट्रांजिट के बारे में आपको रेगुलर इंफॉर्मेशन मिलेगी, और तीसरा मकसद जो है वो टू अंडरस्टैंड एंड प्रिपेयर फॉर फ्यूचर इवेंट। कुछ कुछ बातें अभी जो ऑलरेडी घटित हो रही है, इससे भी हमको अंदाजा आता है तो आगे क्या होने वाला है, गोचर के ग्रह क्या संकेत दे रहे हैं, इसके हिसाब से अच्छा बुरा समय होगा तो क्या इफेक्ट्स होगी, और हमें अपने आप को कैसे प्रिपेयर करना है, हमारे साथियों को भी कैसे प्रिपेयर करना है। थोड़ी बहुत इसकी अगर हम जानकारी दे पाए तो हम बहुत अच्छे से जीवन गुजार सकते हैं और तकलीफों से बच सकते हैं। ये है अपना मकसद। ये 3 एम्स एंड ऑब्जेक्टिव के साथ में पर्पस ऑफ द ग्रुप वी आर डिफाइनिंग, and with this only we will be moving further. Right now these are the 3 purposes of the group. If anybody feels as a part of the community in the future that something else can be added to it, for sure this is open for amendments. Okay, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे कुछ कुछ क्वेश्चंस आएंगे, बातें इंटरेस्टिंग होते जाएगी, और अच्छे अच्छे लोग, जानकार लोग भी इस फोरम में ऑलरेडी है, और भी कुछ लोग ज्वाइन करने वाले हैं। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, अभी तक 50% लोगों ने ज्वाइन किया है, 50% लोगों ने नहीं किया है। तो जैसे जैसे प्रैक्टिसिंग एस्ट्रोलॉजर्स ज्वाइन करते जाएंगे, एटलीस्ट 40-50 ऑफ देम विल बी देयर, सो दे विल ऑल्सो बी आंसरिंग योर क्वेश्चंस, एंड द WhatsApp group will be buzzing with the information. So all those who are interested in astrological events and all are welcome to join this thing, and these are the aims and objectives. ओके, अब हम बेसिक एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, एकदम ही नया हो जिसको कुछ भी नहीं मालूम। सो नॉर्मली हम लोग जब चार्ट्स बनाते हैं, कुंडली बनाते हैं और उसको बनाते हैं, तो इसको कहते हैं नॉर्थ इंडियन स्टाइल डायमंड चार्ट। ये हम फॉलो करेंगे मेथड। ज्यादातर हम लोग नॉर्थ इंडियन डायमंड चार्ट फॉलो करते हैं। तो इसमें हाउस होता है, घर होता है, तो इसको लग्न कहते हैं, फर्स्ट हाउस को, फिर सेकंड हाउस, यहाँ पर है थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस। ये कहीं पर भी कुंडली में लिखा नहीं जाता है। कुंडली में जो आप नंबर देखते हो वो राशि के नंबर होते हैं, ये सिर्फ आपको ध्यान रखना है, ये नंबर्स कहीं पर भी लिखे नहीं जाते। इसको पहला घर बोलते हैं, आपके दिमाग में एकदम फिक्स हो जाना चाहिए। तो इसको, ये जो स्लाइड है इसको हम व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डाल देंगे, आप एक बार देख लीजिए कैसे सीक्वेंस है। इसको लग्न जहाँ पर गणपति का पिक्चर है, और फिर ऐसे मूव होता है एंटी क्लॉकवाइज, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ। फर्स्ट के सामने सेवंथ आता है, फिर 8th, 9th, 10th, 11th एंड 12th। तो ये घरों को ऐसे डिफाइन किया गया है, और ये कहीं पर भी लिखे नहीं जाते, ये दिमाग में फिट होने चाहिए। तो इसके हिसाब से कौन से घर से क्या बात समझती है कुंडली में, इसका हम विस्तार से डिस्कशंस करेंगे। ओके, फिलहाल जो है मैं जो एस्ट्रोलॉजी सिखाता हूं वो कुछ अलग तरीके से सिखाता हूं। तो क्या नया है इस ग्रुप में, आपको क्या नहीं मिला, क्या नया मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं जानता हूँ, अलग अलग प्रकार से एस्ट्रोलॉजी सीखा है। बहुत सारे लोग यहाँ पर जानकार लोग हैं, बहुत सारे। So how different is my approach? I am calling it as a transformative astrology. मैं जो सिखा रहा हूँ उसका हमने टाइटल दिया है ट्रांसफॉर्मेटिव एस्ट्रोलॉजी। इसका मतलब है कि हम जब कुंडली को एनालिसिस करते हैं और हम अपने बारे में जानते हैं किसी के थ्रू, या हम स्वयं पढ़ाई करके जानते हैं, तो जीवन में आमूल रूपांतरण, फंडामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहिए। ये मकसद है ट्रांसफॉर्मेटिव एस्ट्रोलॉजी का।
तो सिर्फ जिज्ञासा के आधार पर जानना कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन हम उससे 4 कदम आगे जाते हैं। जानने की जिज्ञासा होना ये तो कॉमन है, एवरी ह्यूमन बीइंग अंडरस्टैंड्स एंड इट्स इंक्विजिटिव अबाउट नोइंग द फ्यूचर। बट व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, महत्व की बात यह है कि क्या ये जानने से हमारे जीवन में आमूल परिवर्तन आ सकता है, हमारा जीवन सुधर सकता है? तो आंसर है यस, हो सकता है, लेकिन इसके लिए अपना जो तरीका है ज्योतिष शास्त्र का थोड़ा सा अलग होना चाहिए, और जो अलग तरीका है उसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेटिव एस्ट्रोलॉजी। पहले मैं डायरेक्टली आकाशिक रिकॉर्ड्स रीड करता था, बहुत सारे लोगों को बताता था। 20 कंट्रीज में मैं पर्सनली घूमते रहता हूँ। अगले बाय मंथ एंड फिर से टूरिंग शुरू हो जाएगा, कोरोना के हिसाब से थोड़ा बंद हो गया था बीच में। तो मेरा जो तरीका है उसके बारे में भी मैं आपको कुछ बताऊंगा। तो हम इसको कहते हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग। Akashic record reading through astrology is a systematic study of knowing your past karma and its effect on your present life. Diagnosis is done through pattern recognition and repatterning is done through remedial measures. A very important statement, very particular about its approach. Let's repeat it. So Akashic record is a systematic study of knowing our past karma. देखिए, हम जो कुंडली बनाते हैं और उसको बनाते हैं वो अपने जन्म के समय का होता है। भी बहुत सारे यंग कपल जो है वो जानते नहीं है कि जन्म का समय किसको कहते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जन्म का समय उसको कहते हैं जब भी बच्चा पेट से बाहर आता है और उसकी अम्बिलिकल कॉर्ड को हम जब कट करते हैं। तो umbilical cord cutting time is the time where the child is separated from the mother, and that is the time to be recorded for horoscope. पुराने जो लोग हैं, बहुत सारे लोगों का टाइम एग्जैक्ट नहीं होता था, क्योंकि गांव में हॉस्पिटल्स नहीं हुआ करती थी, घड़ी नहीं हुआ करती थी, अंदाज से लिखते थे। लेकिन आजकल तो सारी सुविधाएं अवेलेबल है। सो इफ द पीपल आर केयरफुल अबाउट इट तो बहुत ही परफेक्ट हॉरोस्कोप बन सकती है। सो कॉर्ड कटिंग का टाइम जो है उसको रिकॉर्ड करना चाहिए। इट शुड बी लोकल टाइम, जहां पर भी आप रहते हो वो टाइम को रिकॉर्ड करना चाहिए। और वो टाइम पे ग्रह परिस्थिति क्या थी उसका अगर हम पिक्चर लेंगे, जैसे आकाश का पिक्चर ले लिया ऐसे फोटो पर, तो जो गोचर के ग्रह की अवस्था है बस वही अपनी कुंडली में रिफ्लेक्ट होता है। सो व्हाट इज अ हॉरोस्कोप? कुंडली क्या है? तो हमारे जन्म के समय में आकाश में ग्रह कहाँ कहाँ थे उसका पिक्चर है। अब ये बहुत बड़ी बात होगी, ये इनसाइट थोड़ा ध्यान से समझना, आपको एस्ट्रोलॉजी के प्रति देखने की पूरा नजरिया बदल जाएगा। हमने जो भी पिछले जन्म में कर्म किया है उस कर्मों के आधीन हमें माता पिता मिलते हैं, माहौल मिलता है, एनवायरनमेंट जहां पर हमारा जन्म होता है, और वो कर्म जो है उसको जानने की विधि यानी हॉरोस्कोप। तो हम जब कुंडली का एनालिसिस करते हैं तो क्या कर्म लेके आए हैं, उस कर्मों के आधीन हमें यहाँ क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, क्या अच्छा क्या बुरा, ये सारी चीजें हम जान सकते हैं अपने हॉरोस्कोप के जरिए। सो इट्स नोइंग योर पास्ट कर्मा मीन पास्ट लाइफ कर्मा and its effect on the present life. Okay? It's the very fundamental way of looking at Akashic record through transformative astrology. Diagnosis is done through pattern recognition. तो हम जब कुंडली देखते हैं तो व्यक्ति की आदतें कैसी है, हैबिट पैटर्न जिसको कहते हैं, विचार कैसे है, थॉट पैटर्न्स कहते हैं, इमोशंस कैसी है, भावनाएं कैसी है, इसको इमोशनल पैटर्न्स कहते हैं, और सोल पैटर्न्स, आत्मा के भी कुछ पैटर्न्स होते हैं, मतलब कि आत्मा जो कर्म लेके आती है उसके हिसाब से कुछ पैटर्न्स बनते हैं। तो ये सारे पैटर्न्स जो है वो हमारे अस्तित्व को डिफाइन करता है, हर एक व्यक्ति का डेफिनेशन, हाउ वी आर डिफरेंट देन अदर,
It is the pattern with which you are living is different than the other person's pattern, and that is what makes you unique. So you have a very unique horoscope, and that uniqueness is defining your uniqueness through the patterns. So we recognize the patterns. कैसे पैटर्न्स है, ये कुंडली के एनालिसिस के जरिए अपने को समझता है, और जो भी तकलीफें हैं, और अच्छा भी है, वो सब पैटर्न्स में होता है। अच्छा है तो कोई तकलीफ नहीं है, कुछ बुरा है, कुछ तकलीफें हैं, तो उसके लिए रीपैटर्निंग करते हैं और रेमेडियल मेजर्स देते हैं। तो पूरा शास्त्र इसमें आ गया 4 लाइन के अंदर, स्टार्ट टू एंड, कि क्या है, क्या देखते हैं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं, सारी चीजें इसमें आ गई। So if you are finding it interesting, we'll continue with understanding the karma. Okay? ये ज्योतिष शास्त्र जो है वो कुछ लोग समझते हैं कि ये नसीब का खेल है। नहीं, हम ट्रांसफॉर्मेटिव एस्ट्रोलॉजी में ज्योतिष शास्त्र को कर्मों का विज्ञान कहते हैं। ये अपने कर्मों के अधीन हमें जो माहौल मिला, जो वातावरण मिला, जो एनवायरनमेंट मिला, उसको जानने की विधि है, और ये कुंडली से हम जानते हैं। तो अगर हम कर्मों का हिसाब किताब को समझने की कोशिश करें तो एक होता है दृढ़ कर्म। हिंदी में अगर बात करें तो दृढ़ का मतलब होता है फिक्स कर्मा, जिसको आप नहीं बदल सकते। जीव ने डिसाइड किया है कि हम भुगतेंगे उस कर्मों को। कर्म अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। बुरे को भुगतेंगे ऐसा नहीं, अच्छे को भी भुगतते हैं। लेकिन अच्छे को भुगतते हैं तो किसी को तकलीफ नहीं होती है, यू डोंट माइंड। जब हम बुरे को भुगतते हैं तब तकलीफ होती है, तो हम भगवान को याद करते हैं। सो दृढ़ कर्म होते हैं, हम भुगतते हैं। दूसरे होते अदृढ़ कर्म, जो इतने पावरफुल नहीं होते हैं, उसको आप आसानी से बदल सकते हैं। जैसे अगर आपको कोई सही गुरु मिल गया तो गुरु की नजर पड़ते ही आपके अदृढ़ कर्म गायब हो जाते हैं। इतना पावरफुल इफेक्ट होता है गुरु का। और ये कैसे होता है? तो जुपिटर आपका गुरु कहां पर है कुंडली में, इसके ऊपर से बहुत सारी बातें समझती है। बात आती है तीसरे वाली, सो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। दृढ़ है उसको तो भुगतना ही, अदृढ़ है वो तो ऐसे भी कुछ अच्छे कर्म करेंगे, गुरु कृपा होगी, देव दर्शन करेंगे तो भी चले जाते हैं। लेकिन जो बीच वाले दृढ़ अदृढ़ कर्म, part of it is stronger which cannot be deleted, part of it can be deleted। तो ये जो बीच वाले कर्म है वहां पर रेमेडीज काम करती है। अगर आप रेमेडी करोगे तो 50-60%, 80% तक वो कर्म को आप डिलीट कर सकते हो। कर्मा डिलीट एक्सरसाइज, हिंदी में हम कहते हैं इसको कर्मक्षालन क्रिया। तो कर्मक्षालन करके, कुछ रेमेडीज करके, कुछ उपाय करके हम अपने कर्मों का क्षालन कर सकते हैं। वी कैन डिलीट अवर कर्मा एंड save ourselves from the troubles of the bad karmas of the past life. We have a free will. We can correct our karma by correcting our patterns. Listen very carefully. The secret of the remedies is in correcting our pattern. छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। कोई व्यक्ति को बहुत बात करने की आदत है। अब बहुत बात करते हैं तो कोई सीक्रेट रख नहीं सकते हैं और सब कुछ बता देते हैं, तो उसके वजह से उस व्यक्ति को तकलीफ हो सकती है। लेकिन हम अपने पैटर्न्स के बारे में अज्ञात होते हैं। इसको टेक्निकल लैंग्वेज में ब्लाइंड स्पॉट्स कहते हैं। वी आर हैविंग द ब्लाइंड स्पॉट्स एंड वी डोंट नो आवर ब्लाइंड स्पॉट। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज द ब्लाइंड स्पॉट। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं और उसी पैटर्न्स के जरिए तकलीफें आती। अब व्हाट इज द फंडामेंटल ऑफ ट्रांसफॉर्मेटिव एस्ट्रोलॉजी इज टू अंडरस्टैंड द पैटर्न, especially the blind spot patterns,
व्हाट इज गिविंग यू ट्रबल, कौन सी चीज से आपको तकलीफ हो रही है, वो जानना और उस पैटर्न को करेक्ट करना। जैसे कि एस्ट्रोलॉजर ने आपको बता दिया है कि आप बहुत ज्यादा बात करते हो, इसकी वजह से आपको तकलीफ हो रही है। भगवान ने अपने को 2 कान और 1 मुंह दिया है, सो 2/3 टाइम लिसनिंग, 1/3 टाइम टॉकिंग, that is the natural proportion given by God. But if somebody is talking 99% time, then that pattern needs correction. So if the person becomes aware of the blind spot and start correcting the pattern, instant transformation, that is what is the secret of transformative astrology. तो जो दृढ़ अदृढ़ कर्म है जिसकी वजह से तकलीफें आती है, उसके पीछे छिपा हुआ जो है वो पैटर्न है। वो पैटर्न को अगर हमने समझ लिया और करेक्शंस कर लिया तो मूलभूत परिवर्तन, फंडामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन इन द लाइफ इज पॉसिबल। ये है बेसिक ऑफ ट्रांसफॉर्मेटिव एस्ट्रोलॉजी। ओके, आई होप यू आर एंजॉइंग एंड यू आर विथ मी। अब हम और भी जो ट्रेडिशनल वेज ऑफ लुकिंग एट कर्मा जो है उसको देखते हैं, एंड देन वी विल open it up for the question answer. So just few more slides I will show you about karma. ओके, ये हमने देखा आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है। अभी हम कर्मों की बात करेंगे। 3 टाइप्स ऑफ कर्मा, 3 टाइप के हैं। संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रियामाण कर्म। ये सारी हमारे संस्कृति में सभी को मालूम होता है। संचित कर्म यानी किटी ऑफ द कर्मा, कर्मा बैंक, जिसमें हमारे पूर्व जन्म के सारे कर्म है। अगर हम इसको आर्चरी के साथ में, धनुष विद्या के साथ में कनेक्ट करें तो हमारे माथे में जो बाण है, जो तीर पड़े हैं, वो हमारे संचित कर्म है। अभी हम जो भुगत रहे हैं वो हमारे प्रारब्ध कर्म है। मतलब कि ये जो तीर चढ़ा हुआ है, ये हमारा अभी हम जो कर रहे हैं क्रियामाण कर्म जो हम कर रहे हैं, ये जो तीर चला रहे हैं अभी छूटा नहीं है, तो ये क्रियामाण कर्म है अभी हम जो कर रहे हैं। लेकिन एक बार तीर छूट गया, तीर छूट गया तो उसके ऊपर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है। तीर छोड़ना कि नहीं छोड़ना इसके ऊपर कंट्रोल है, लेकिन तीर छूट गया उसके ऊपर हमारा कुछ कंट्रोल नहीं है, और उसी को प्रारब्ध कर्म कहते हैं। तो ऐसा कहते हैं कि प्रारब्ध कर्म को तो भुगतना ही पड़ता है, और इसीलिए प्रारब्ध कर्म ब्लाइंड स्पॉट बन के आपके जीवन में आता है। और जब तक मेंटोर नहीं मिलता है, गुरु नहीं मिलता है, आपको गाइड या तो काउंसलर नहीं मिलता है जो बताने वाला, तब तक वो ब्लाइंड स्पॉट आपको हैरान करते रहता है। The job of a mentor or a counselor or an astrologer or a guru is to make you aware of your blind spot and help you to come out of that blind spot by recognizing the pattern and repatterning through certain methods, which we call it as a remedial measures. तो ये तीनों कर्मों के ऊपर कंट्रोल आ जाता है। संचित कर्म जो है बहुत सारे पड़े हैं, कर्मक्षालन क्रियाओं से इनका भी क्षालन हो जाता है। और अगर हम क्रियामाण कर्म पूर्ण जागरूकता से करेंगे, जैसे गुरु माँ ने शुरू में बताया, तो हमारा जीवन काफी हद तक सही तरीके से, सही मायने में हम खुशी खुशी जी सकते हैं। प्रारब्ध का कंपल्शन तो सिर्फ उन्हीं लोगों को है जिनके जीवन में क्रियामाण कर्म में जागरूकता नहीं है, और उन्हीं का रीडिंग 100% करेक्ट आता है हॉरोस्कोप में। अगर कोई व्यक्ति जाग गया, इसको बोध हो गया, कोई बुद्ध बन गया, जिसकी जागरूकता चरम सीमा पे पहुंच गई,
उसकी कुंडली को अगर हम अर्थघटन करेंगे, बताएंगे, तो वो वैलिड नहीं होता है, क्योंकि उसने अपने सारे प्रारब्ध को अपने क्रियामाण की जागरूकता से बदल दिया। और यही है फंडामेंटल्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेटिव एस्ट्रोलॉजी। Ultimate aim of transformative astrology is to develop your awareness for the Kriyaman karma, delete all the effects of the Prarabdha karma, delete all the Sanchita karma, which is a very tough job. It's not as easy as I'm telling you. काफी बड़ा काम होता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन इसके लिए एक पॉसिबिलिटीज है और व्यक्ति अपने कंपल्शन ऑफ कर्मों से जो होता है उससे बाहर आ सकता है। दैट इज कॉल्ड एक्सपीरियंसिंग द फ्रीडम। इसको हिंदी में जीवन मुक्ति कहते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेटिव एस्ट्रोलॉजी का जो फंडामेंटल है वो हमें जीवन मुक्ति की ओर कैसे आगे बढ़ने का इसका फंडामेंटल ज्ञान विज्ञान देता है, और यही एसेंस है ट्रांसफॉर्मेटिव एस्ट्रोलॉजी का। सो आप जब इस फोरम के मेंबर्स बनते हो तो मैं तो यही समझता हूं कि जो भी लोग हमारे संसर्ग में आते हैं वो मोक्षगामी आत्माएं होती है, वो ही हमारे संसर्ग में आते हैं। देयर इज अ फंडामेंटल लॉ कॉल्ड लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो हम कैसे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं? जैसे हमको जिस चीज में रुचि है उसी प्रकार के लोग हमारे प्रति आकर्षित होते हैं। सो आप सभी मोक्षगामी आत्माओं को मेरा प्रणाम, और हम इसी पाथ पे आगे बढ़ेंगे। ये एक ही मकसद है। ज्योतिष शास्त्र के जरिए हम, ट्रांसफॉर्मेटिव एस्ट्रोलॉजी के जरिए हम अपने पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करके रीपैटर्निंग करके मोक्ष मार्ग पे, मुक्ति के मार्ग पे आगे बढ़ सके हैं। इसीलिए इस कर्मों को जानना जरूरी है। ओके, आई होप आई एम मेकिंग इट वेरी क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब हमको बचपन से एक बात ड्रिल किया गया है कि आदमी खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। बहुत सुना हमने, बचपन से सुना, और वो एक अंदर घुस गया। ये खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा, ये सच नहीं है पूर्ण रूप से, ये अर्ध सत्य है। फिजिकल बॉडी में कुछ लेके नहीं आया, बॉडी मिला आपको, उधार का है वो। और जब हमारा मृत्यु होता है तो हम यहाँ से कुछ लेके नहीं जा सकते विद अ फिजिकल बॉडी। बट ये अर्ध सत्य इसलिए है कि हम अपने कर्म लेके आए हैं और कर्म लेके जाएंगे। यू हैव कम विथ योर कर्मा एंड यू विल गो बैक विथ योर कर्मा। सो खाली हाथ आया खाली हाथ जाएगा, ये सच है फिजिकल बॉडी के तल पे, लेकिन आत्मा के तल पे आप कर्म लेके आए हो और अपने कर्म, अच्छा बुरा जो भी आपने कुछ कम किया कुछ ज्यादा किया, वो सब लेके जाओगे और अगले जन्म में फिर से वही गाड़ी आगे बढ़ेगी वहीं से। So karma says if you focus on hurt, you will continue to suffer. If you focus on the lesson, you will continue to grow. अब ये फंडामेंटल है ट्रांसफॉर्मेटिव एस्ट्रोलॉजी का। We do not look into the karma to suffer. Through transformative astrology, we look into karma to understand the patterns, learn the lessons through repatterning and grow. That is what makes the life happy. So through astrology we can remove our blind spots and we can grow as a human being. यही तो मकसद है। हमको मनुष्य देह क्यों मिला? मनुष्य देह को साधन कहते हैं। साधन यानी इंस्ट्रूमेंट, बॉडी इज अ इंस्ट्रूमेंट, साधन। तो साधन को साधना में लगाना है। यूज द ह्यूमन बॉडी द इंस्ट्रूमेंट फॉर योर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, साधना। और साध्य करने योग है, योग्य जो है उसको पाना है, वो है जीवन मुक्ति। तो ज्योतिष का विज्ञान, ज्योतिष, ज्योति यानी लाइट, लाइट ऑफ अवेयरनेस, ईश यानी ईश्वर। उस लेवल पे जो ज्योतिष जान लेता है उसको देवज्ञ कहते हैं। हिंदी में ज्योतिष के लिए क्या शब्द है? देवज्ञ।
मराठीत म्हणतात देवज्ञ, गुजराती में देवज्ञ, ज्ञा ऐसा प्रोनाउंसिएशन है, हिंदी में देवज्ञ बोलते। जो जानता है ज्योतिष, ईश्वर की ज्योति, ईश्वर की द लाइट ऑफ अवेयरनेस, जिसको मालूम है, जिसको कर्मों का खेल मालूम है, कर्मों के खेल के परे कैसे जाने का ये मालूम है, वो सही ज्योतिष। ये गरिमा है हमारे सनातन में, इसको जानना। इसी के लिए हमने ये फोरम बनाया कि हमारे जो हिंदुस्तानी लोग हैं, दुनिया भर में है हमारे मित्र, ये सब चीजें हमको जाननी चाहिए। हम सनातनी हैं तो सनातन की डेप्थ क्या है हर चीज में जाननी चाहिए। तो कर्मों का खेल कैसे होता है? Basically, it is not to focus on to the hurt or the bad karmas of the past life. It is to learn the lesson early as possible and to grow. That is the very method that we use for the astrology. बहुत सारे लोग समझते हैं एस्ट्रोलॉजी में कुछ भी कुंडली देखते हैं, मंगल किधर है, गुरु किधर, राहु के तो देखते हैं, कुछ तो भी बताते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये बात नहीं। ये ट्रांसफॉर्मेटिव एस्ट्रोलॉजी जो है अपने मूलभूत परिवर्तन के लिए, फंडामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए है, और वो अपनी साधना है। वो अपने को मुक्ति का मार्ग दिखाता है। अपनी गाड़ी कहाँ अटकी है वो अपने को हॉरोस्कोप के जरिए समझता है, और हम मुक्ति के मार्ग पे आगे बढ़े, इसके लिए ट्रांसफॉर्मेटिव एस्ट्रोलॉजी है। ऑलराइट, कर्मों के बारे में और भी कुछ बातें हैं, जानते हैं। प्लेजर एंड पेन कम्स फ्रॉम योर ओन पास्ट एक्शंस, सो इट इज इजी टू डिफाइन कर्मा इन वन शॉर्ट सेंटेंस। एक्ट वेल एंड थिंग्स विल गो वेल, एक्ट रॉन्गली एंड थिंग्स विल गो रॉन्ग। सो पहले के कर्म कुछ है, वहां से कुछ तकलीफें हैं, लेकिन आपका रिएक्शन को अगर आप रिस्पॉन्स में कन्वर्ट करते हो, and if you respond in a right manner to learn the lesson, and if you are learning the lesson instantly, आपको कुछ तकलीफ नहीं होगी। But if you don't learn the lesson, that pattern will keep on troubling you. How long? Until you learn the lesson. How much time it takes? It may take few lifetimes. छोड़ेगा नहीं वो आपको, क्योंकि वो आया ही आपको सिखाने को। लेकिन आपने जैसे जाना कि हाँ मुझे ये सीखना चाहिए, ये सीखने से मैं इसमें से निकल जाऊं, आप जल्दी से जल्दी वो चीज को सीख लो और आपकी मुक्ति हो जाएगी उस पैटर्न से। अब ये ज्ञान, ये असली ज्ञान है ट्रांसफॉर्मेटिव एस्ट्रोलॉजी का। ये ज्ञान हमको हमारी कुंडली देख के समझता है, और उसको देख के हम इसको पकड़ते हैं कि क्या बदलने से जीवन बदलेगा। दैट इज द वेरी फंडामेंटल ऑफ ट्रांसफॉर्मेटिव एस्ट्रोलॉजी। ये जीवन का परिवर्तन करने की विद्या है, ज्योतिष विद्या जो है। कितना समय है? ठीक है, ये आखिरी, इसके बाद में हम आपका क्वेश्चन आंसर लाइव लेंगे आज। इसके बाद वाले सेशन में आपके जो क्वेश्चंस व्हाट्सएप ग्रुप पे आएंगे उसको लेंगे। अब हम देखो, हमने कितनी, मैं बचपन से देखते जाता हूं कि बहुत डर क्रिएट करती है कुछ चीजें। सो फियर बेस, कर्मों को हमको क्या बताता है? पनिशमेंट। आपने गलत किया तो आपको पनिशमेंट मिलेगा, ऐसा हमारे को बिलीफ सिस्टम में डाला गया, जो कि गलत है। फियर बेस, कर्मा इज अ पनिशमेंट, कर्मा इज अ रिट्रीब्यूशन, ब्लेम इट ऑन द कर्मा, ये हमको सिखाया गया। अब हमारा जो रवैया है, जो तरीका है, वो अलग है। कैसे अलग है? सो ट्रांसफॉर्मेटिव एस्ट्रोलॉजी का जो फंडामेंटल है, वी डोंट ऑपरेट फ्रॉम फियर। द मेजर शिफ्ट दैट वी डू राइट इन द बिगिनिंग इज ऑपरेट फ्रॉम लव। सो लव बेस, व्हाट डज इट मीन? कर्मा इज अ गिफ्ट दैट ब्रिंग्स यू लेसन्स फॉर योर ग्रोथ and will continue to bring these lessons until you learn from them. आप कर्मों को कौन से नजरिए से देखते हो? What is your attitude to look at life, to look at your karma? If you look with the eyes of love, अगर आप प्रेम मार्गी हो, अगर आप प्रेम पूर्वक देखते हो, तो जो आपके अच्छे बुरे कर्म है वो आपको जगाने के लिए आए हैं, आपको कुछ लेसन सीखने के लिए आए, सिखाने के लिए आए हैं, और वो लेसन सीख लिया आपने तो आपका ग्रोथ होगा।
ऐसी प्रेमपूर्ण नजरों से हमने अपने कर्मों को देखना है, नहीं कि पनिशमेंट के तौर पे। Because karma is not a punishment but an opportunity to experience wrongdoing that we have done to others so that we can learn not to ever repeat it again. अनकॉन्शियस बिहेवियर में अगर हमारे पूर्व इस जन्म का या तो पूर्व जन्म का अगर हमने कुछ गलत किया है तो वो कर्म अपने को लेसन सिखाने के लिए कुछ संजोग में अपने पास वापस आते हैं। पिंग पोंग बॉल की जैसा हमने बॉल दीवार पे फेंका तो दीवार वापस फेंकेगी, अपने पास आएगा। तो लाइफ इज लाइक दैट, ऑल कर्मास आर लाइक दैट। तो जब वापस आता है तो अपने को दुख होता है, तो ये बताता है कि हमने किसी को दुख दिया है, इसीलिए हमारे पास दुख वापस आता है। तो ये न करना चाहिए, ऐसे कर्म हमें नहीं करना चाहिए। ये सीखने की अपॉर्चुनिटी है वो। तो क्या करना चाहिए? अगर हमको दुख नहीं चाहिए तो किसी को भी नहीं चाहिए। तो हमने ऐसे कर्म चाहिए कि हम किसी को दुख ना दें। अगर ये बात समझ में आ गई और ये प्रेम पूर्वक समझ में आ गई, not treating as a punishment but as a opportunity to grow, then I think you understood the very fundamental of transformative astrology. आज के लिए इतना काफी है। होप यू हैव एंजॉयड टुडेज सेशन। कुछ गहरी बातें, कुछ समझ अच्छा लगता है। कर्म पनिशमेंट नहीं है, इट्स अपॉर्चुनिटी टू लर्न एंड ग्रो। ओके, ये एक बात भी अगर आप लेके जाते हैं इस मीटिंग से, तो आज का मीटिंग और ये जो समय है उसको हमने सदुपयोग किया है। व्हाट इज द लेसन? इवन इफ यू डोंट हैव द क्वेश्चन, इट्स ओके। आप आत्मनिरीक्षण कीजिए, डू द इंट्रोस्पेक्शन फॉर नाउ। मैं आपको बहुत गहरी बात बता रहा हूँ। ओके, 2-3 क्वेश्चन आए, लेकिन मेरी बात पूरी करता हूँ, फिर सवाल का जवाब दूंगा। देखिए, आप आत्मनिरीक्षण कीजिए, डू द इंट्रोस्पेक्शन, लुक इनटू योर ओन लाइफ। जहां जहां भी आपको तकलीफ हो रही है, यू नो, द मोमेंट आई टेल यू, यू नो वेयर इज द प्रॉब्लम। That is the area of growth for you. There is some lesson that you need to learn. And if you can understand that and learn that lesson, instantly that problem will go away from your life. This is the very powerful master key of transformative astrology. The question is, assume that we are trying to help others. It's just a question, right? I'm trying to help someone and we gave them the right path. While they following the right path, for some reason it won't get succeeded and double karma gets tapped onto them. Will that also hit back to us? It can. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अपनी योग्यता को बनाना चाहिए बिफोर वी इंटरफियर इनटू समबडी एल्सेस कर्मा। और ये बहुत बड़ी गहरी बात है कि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, हमारे ग्रुप में कम से कम 6000 रेकी मास्टर्स है हमारे ग्रुप में। हमारा ग्रुप में 3 लाख लोग हैं टोटल वर्ल्ड वाइड। ओके, तो 3 लाख लोगों को मैं पर्सनली मिला हूं, जो मुझे पर्सनली जानते हैं। ऑनलाइन तो बहुत सारे लोग जानते हैं थ्रू मीडिया एंड ऑल, लॉट ऑफ पीपल नो। आई हैव पर्सनली मेट 300,000 पीपल इन माई लाइफ। आई एम 63 years old now। तो मैं आपको ये बता सकता हूं कि हम जब भी कोई हीलिंग करते हैं, या तो एस्ट्रोलॉजी है, काउंसलिंग है, टैरो रीडिंग, एनी डिवाइन आर्ट फॉर दैट मैटर, न्यूमरोलॉजी, palmistry, ऑल दीज आर कॉल्ड डिवाइन आर्ट। If you are not capable and if you are interfering into the other people's karma, for sure you are at risk. You have to first inculcate right attitudes before you go ahead with the divine arts, otherwise you are at a risk. I hope I have answered your question. We'll go into the details of it when the time permits. Sandeep is asking, sir, does karma done by our parents affect us at the birth? 100%. 100%. ऐसा कहते हैं, कुछ लोग बोलते हैं 6 साल, कुछ बोलते हैं 8 साल, कुछ बोलते हैं 11-12 साल तक, बट है numbers varies, but all the karmas of the child are actually affecting the parents. There's a combined, there's a joint karma. Okay,
तो पेरेंट्स के कर्म हमको अफेक्ट करते हैं, हमारे कर्म पेरेंट्स को अफेक्ट करते हैं, कुछ कनेक्शंस है, इसीलिए तो हम किसी माता पिता के रूप से हमारा जन्म हुआ है. So answer is yes, Sandeep, it does affect. Parag is asking, good evening Guruji, are deep-rooted pattern itself the blind spot? Yes, 100%. Deep-rooted patterns do reflect as the blind spot, 100%. Are there types of patterns which we can be aware of to learn and grow faster? Yes. All the types of pattern, even a small pattern can become a big blind spot and trouble you. Say for example, let me give you an example. A small thing like criticizing others all the time. Person is not criticizing you, but person is critical of other things all the time. Presence of such a person can pull down in awareness, can reduce your PVF. Even physical proximity through the vibrational influence, your PVF can come down. Now this can become the big blind spot. Okay. So person has to be aware all the time and do the corrections at earliest possible. Only then the transformation will happen. Every pattern needs correction. Higher the awareness, more the blind spot you will be able to find. See, at a lower awareness, people don't even agree that they have the blind spot. Once their awareness increases, they recognize thousands of blind spots. Because even to recognize the blind spot, you have to grow in awareness. First of all, you have to change your attitudes. साधना की शुरुआत होती है एटीट्यूडनल करेक्शंस के साथ में. आप जब एटीट्यूड्स करेक्ट करते हो, उसके बाद में अवेयरनेस बढ़ता है, तो हमें क्षमता आती है कि हम अपने ब्लाइंड स्पॉट को देख सके. देखने से हैरानी होती है शुरू में, तो इसलिए हम देखना नहीं चाहते अपने आप को. लेकिन अगर हम करेजियस है और हम अपने पैटर्न्स को देखें और परिवर्तन लाए, तो जीवन में आमूल परिवर्तन आ सकता है. आई होप आई आंसर्ड यू क्वेश्चन. Okay, Sachin Bhatt is asking, for how long soul has to wait to be reborn again? ये lot of variation is there and depends on the awareness of the soul. The lowest awareness soul, okay, can be reborn immediately. जैसे यहां से निकला वहां गया, okay. Hardly few days in between or few hours in between or few minutes, इधर से निकला उधर गया. लेकिन बहुत ही पुण्यशाली आत्मा है, बहुत पुण्य कर्म के, बहुत ही हाई अवेयरनेस वाला आत्मा है, तो उसको इमीडिएटली बॉडी नहीं मिलेगा. 200-300 साल, 1000 साल के बाद में उसको शरीर लेना धारण करेगा, वो हायर लोकों में जाएगा, वहां पर भी अपनी साधना होती है. सो अति पुण्यशाली आत्मा है, उसको बहुत लंबे अरसे के बाद में फिर से आना पड़ेगा. और जिसका मोक्ष हो गया है, जिसका निर्वाण हो गया है, जो जीवन मुक्त है, उसको तो वापस आना नहीं पड़ेगा, उसका तो पूरा गेम खत्म. तो ऐसी आत्मा को बिल्कुल नहीं आना पड़ेगा. सचिन भट्ट, आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन. देवेश काचवा इज आस्किंग, गुरुजी प्रणाम, योर सेशंस आर ऑलवेज इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग. Thank you, Devesh. Shilpa is asking, does each and every type of karma have a remedy? Does someone with a guru in life need karmakshalan? Oh yes, guru will tell you to do karmakshalan. You have to do the karmakshalan. अदृढ़ कर्मा जो है, वो गुरु की दृष्टि आपके ऊपर पड़ने से भी गायब हो जाते हैं. That's why when we do Akashic record, 50% कर्मा तो 1-1.5 घंटे के सेशन में ऐसे गायब हो जाते हैं. पर्सन फील सो लाइट, क्योंकि आपका बहुत सारा कार्मिक बर्डन जो है वो गायब हो जाता है. लेकिन जो डीप रूटेड पैटर्न जो है, जो ब्लाइंड स्पॉट्स है, उसके लिए तो मेहनत करना पड़ता है. एंड विद द गुरुज गाइडेंस यू कैन डू द रेमेडीज, लुक इनटू योर पैटर्न्स, चेंज द पैटर्न्स एंड वॉक द पाथ ऑफ मोक्ष. रुद्रा इज आस्किंग, गुरुजी हाउ डू वी नो दैट वी आर इंटरफियरिंग अदर पीपल्स कर्मा? हाँ, इट रिफ्लेक्ट्स एज अ नेगेटिविटी ऑन टू यू. सी हियर ऑलमोस्ट एवरीबडी आई नो, इंक्लूडिंग स्मिता, Kamudi, Brahmprakashi, everybody, okay, almost everybody. Pandapasri is there.
वी आर ऑल इनटू प्रैक्टिसिंग ऑफ डिवाइन आर्ट्स। हमारे बहुत सारे पुराने रेकी मास्टर्स, प्राणिक हीलर्स भी इस ग्रुप में है, मैं जिनको दायकों से जानता हूँ। दायके मीन्स मल्टीपल ऑफ 10 years, ओके, 20-30 साल से 40 साल से जानता हूँ। ऐसे लोग भी इस ग्रुप में अभी मेरे सामने स्क्रीन पे दिख रहे हैं। तो जब भी आप डिवाइन आर्ट प्रैक्टिस करते हो, इट मे बी रेकी हीलिंग और प्राणिक हीलिंग और पेंडुलम डाउजिंग, और इट कैन बी टैरो रीडिंग, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, देयर आर hundreds of divine arts. Different cultures have different divine arts. If you are picking up the negativity, okay, suppose आपने 1 घंटा टैरो रीडिंग किया और सामने वाले की नेगेटिव आप में आ गई, आप अस्वस्थ हो गए, डेफिनेटली यू हैव पिक्ड अप द नेगेटिविटी ऑफ द पर्सन। आपने किसी को रेकी हीलिंग किया, उसकी नेगेटिविटी आपके ऊपर आ गई, आपको तकलीफ हुई, डेफिनेटली यू हैव इंटरफियर्ड विद द कर्मा। That is bad. If you are practicing the divine art, you must know how not to interfere with other people's karma and how not to pick up the negativity of the person. And that needs a lot of sadhana. जो लोग बिना साधना किए बहुत तेजी से दूसरों को मदद करने की कोशिश करते हैं, वो बहुत ज्यादा नेगेटिविटी पिकअप कर लेते हैं। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन, रुद्रा। Yasmin is asking, no karma, no incarnation. 100% true, Yasmin. सब कर्म खत्म हो गए, कर्मों के बंधन से मुक्ति मिल गई, तो मुक्त आत्मा को फिर से शरीर धारण करने की जरूरत नहीं पड़ती, बस वो आखिरी जन्म हो जाता है। Okay, there's another question by Parag. Can we remove the karma by addressing it in awareness? By growing in awareness, by increasing the vibrational frequency of you at that higher vibratory frequency, just with the intention you can come out of your karma, but that needs a very high frequency. Okay, अगर ग्रॉस कर्म हमने किया है तो हमारी फ्रीक्वेंसी ग्रॉस कर्मों की वजह से हाई हो नहीं सकती, so there is a limitation at which you are vibrating. So one of the way of karmakshalan is to grow high in vibrancy. So when your vibrancy increases, you can come out of your karma in a very easy manner. Sachin Bhatt is asking, by sound healing practice daily can we remove the karma? Not just sound healing. There is a proper art of removing the karma with the sound healing, and there is a lot of scientific research on that, Sachin. There is called karma removal frequency. There are 5. Okay, those frequencies, if you listen daily, definitely you can reduce your karma. It is scientifically proven. Okay, साउंड हीलिंग में बहुत सारा रिसर्च हुआ है, मेरा खुद का 11-12 साल का रिसर्च है साउंड हीलिंग में, मैंने बहुत सारा काम किया है साउंड फ्रीक्वेंसीज के ऊपर, और ये कर्मक्षालन विधियों का भी हमने बहुत सैकड़ों लोगों पे रिसर्च किया है। Okay, so there are 5 special frequencies which if you play, then karmakshalan happens for sure. Those are called karma delete pipes. Okay, 5 frequency है। और अगर आपको एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बताऊं, एक छोटी सी इंसाइट है, 1 मिनट लूंगा फिर हम पूरा करेंगे। शनि देव जो है वो कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं अपने हॉरोस्कोप में। सो कर्म प्रदान, पिछले जन्म में हमने क्या कर्म किया था उसका सबसे बड़ा जो इंडिकेशन देते हैं हॉरोस्कोप में वो है सैटर्न, शनिदेव। सो हॉरोस्कोप में शनि कहां पर है, इसके ऊपर से आपको बहुत सारा पता चलता है। तो एक फ्रीक्वेंसी है शनि की, साउंड हीलिंग पाइप है उसका, वो पाइप बजाने से बहुत तेजी से कर्मक्षालन होता है। और ये जब हमने 15-20 प्रोग्राम किए थे कैंसर हीलिंग के लिए, तब मैं हमेशा वो पाइप बजाता था। आप में से बहुत सारे लोग मेरे कैंसर हीलिंग के साउंड हीलिंग सेशंस में आते थे, मुझे याद है, बहुत सारे जाने पहचाने चेहरे हैं यहाँ पर। तो वो एक शनि का पाइप में बजाता था और बहुत लोगों को काफी रिलीफ हुआ। मुझे सैकड़ों टेस्टिमोनियल्स आए थे, इवन ऑनलाइन इतना सारा इफेक्ट होता है। एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी जो है सैटर्न की, वो अमेजिंग है,
कर्मशालन के लिए. Sachin Bhatt, I think I have given you detailed answer. Kiran Purit is asking, Guruji, how are our karmas calibrated between the degree of good and bad? Degree of good and bad is how you understand it. There is nothing, no calibration, okay? But if you are really asking from the scientific point of view, I will tell you the definition of calibration because I am a scientist. I understand how to calibrate karma, and that is unique for everybody. Understand this. Don't do unto others what you don't like to be done to yourself. That is the fundamental method of calibration. Okay. अगर ये बात, ये सेंटेंस आपको समझ में आ गया तो कर्मों का कैलिब्रेशन का मेथड जो है आपको समझ में आ जाएगा. Poonam Batra is asking, where can I find Shanidev frequency as I am a candidate for suspicious malignancy? I will tell you. Poonam, you connect to me on my personal window on WhatsApp. I will give you the information about that. Alright. So, my dear friends, it had been a very, very amazing 1 hour. I am sure you have utilized your this evening time very well. You got some insights which are life transforming. And every week we will continue meeting. Anytime you get some very tricky questions, it's bothering you, nobody is answering you, I will spare some time. I'll consider my efforts worthwhile if I can solve some of your tricky issues and tell you a very perfect, correct scientific answer. Because I have done my entire life, I had been doing research into this esoteric subjects and huge database. So I will give you a very reliable kind of a scientific answer based on my research. Okay. That is the whole purpose of this forum. So thank you very much for joining. Over to Guruma for शांति पाठ. बहुत अच्छा सेशन रहा, बहुत आनंद आया आप सभी लोगों के साथ में. शांति पाठ के साथ में इस सेशन को पूर्णाहुति करेंगे. Over to Guruma. Whenever we get such deeper insights, that insight going within and getting rooted itself starts that process of transformation. So any one insight also if we get, we should start implementing that in life. And we start seeing the positive spiral opening in our life. अपने जीवन में कुछ भी हमें अगर एक इंसाइट मिल गई तो तुरंत उसके ऊपर अमल करते हैं तो जीवन पूरा बदलना शुरू हो जाता है. We just should not go on learning and gathering information like a rack picker. We should go on implementing it in every moment. And when the life starts transforming with all these insights, it's a wonderful journey. A kind of detached involvement comes in life, which starts giving more and more insights into everything which is happening within us, around us. And all that comes to us as lessons of life, and life itself starts flowing through us, removing the blockages which are there within us. Let's all surrender at the feet of the masters and allow these blockages to be removed by learning and implementing in every moment. And the reward is wonderful, bliss and joy, which the whole world needs now. So let us be the instruments through which this bliss and joy radiates by way of coming out of all the karmas. Let's pay our gratitude to the Masters for giving such insights in all the moments to us. We will chant Shanti Path and radiate all these vibrations to the whole globe. Om Sarvesham Swastir Bhavatu Sarvesham Shantirbhavatu Sarvesham Purnam Bhavatu
सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनो, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। Let there be bliss and joy all the time in everyone's life. Let all auspiciousness prevail. Thank you.